पास्ट में जिस तरह से फ्रॉम द बिगिनिंग गुजरात टाइटंस ने जो करके दिखाया, इंक्लूडिंग एलएससी के साथ 2 नई फ्रेंचाइजी आए, बाद में सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया सीजन के हिसाब से आपके लिए? नहीं, देखिए आईपीएल में ये कोई नया नहीं है, और जैसा आपने कहा कि 3 साल पहले जो शुरुआत थी तब तो आप केवल 3 ही प्लेयर रिटेन कर सकते थे। इस बार हमारे पास 5 प्लेयर थे रिटेन करने के लिए, तो वो पहले से भी और बेहतर है। और जैसा मैंने कहा कि हर साल एक नया सर्कल है, और सब प्लेयर्स भी यूज टू हैं कि सबको पता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होने हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट का ये पार्ट एंड पार्सल है, स्पेशली फ्रेंचाइजी क्रिकेट का। दे ऑल आर यूज टू इट एवरी 3 years, not if not all, at least 60% of them, and we are looking ahead। और वी हैड अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, यंगस्टर भी हैं और एक्सपीरियंस भी है। पीपल लाइक जॉस बटलर, कगिसो रबाडा, बहुत सारे एक्सपीरियंस एडिशन है। तो जिस प्रकार की हमने शुरुआत करी थी उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आशीष जी, कैप्टन मिस्टर गिल, परेश दवे फ्रॉम ईटीवी भारत। 2 क्वेश्चन है। एक, जोस बटलर लिया गया है, वो बैट्समैन के पर्सपेक्टिव से लिया गया है या विकेट कीपर? नंबर 1। नंबर 2, आपने जो बॉलर लिए है उसमें भारत के ज्यादा बॉलर है, तो कंडीशन के ध्यान से आपने चुने हुए हैं? सर, फर्स्टली तो जी जॉस बटलर को एज अ विकेट कीपर लिया गया है। Type of cricket you are going to bring it to the people? Okay, whatever you have done it in the past, but what in 2025 special? I don't think anything special, sir. I think if you look at our record over the past 3 years, we are the team with the most wins and the highest percentage of wins. So if we continue to do that, it's going to be another great season for us. And just because it's a new season, I don't think we have to do anything different. I think over the past 3 years, we have played the most consistent cricket, and the wins and the matches, it speaks for itself. Big auction happening after every 3 years. So is it a too small span of time, and players get disbanded and go to different units? See, this is that kind of a thing. If instead of 3, let's say you do 5 years. After 3, 4, 5 years, some people will feel that with 5 years are not enough. So see, these are all rules which are not up to us, and it's same for every team. And so you have to operate in a manner which everybody else does. So there's nothing new for us, and we were ready for this, and not only us, every team does this, and all the franchisees are ready for that. Having different characteristics as a leader. So being the captain of Gujarat Titans, being the captain of one of the formats of Indian team, to what extent are you taking it further for India's future with the new experience as Gujarat Titans captain? So definitely, I think I've had more experience captaining Gujarat than the Indian cricket team for sure, and the experience that I have here, the experience that I get here from Ashu Paji or Vikram Paji is immensely treasurable for me. And like you said, I've played under various captains, and each captain has a different quality, and there are some qualities that resonate with you as a person, and those are the kind of qualities that you tend to take forward, and that is what I'll try to do. सर, बैटिंग लाइनअप पे एक बार आई थिंक जब मैच शुरू होगा तभी आपको थोड़ा बेहतर आइडिया होगा इस चीज़ का। आई थिंक बैट्समैन जो भी टीम में आते हैं, या फिर जो भी उनको एक रोल दिया जाता है पूरी टीम की कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जिस हिसाब से पूरी टीम फ्लरिश करे और पूरी टीम अच्छा खेले, उस हिसाब से प्लेयर्स को उनका रोल दिया जाता। और जब मैच के पास पहुंचेंगे तब आई थिंक देखने को मिलेगा आपको। Shubhan, Siddharth Pandya from the PTI. Think it to get it balanced at the right time, at the right place. Are you talking about spin-friendly wickets, right? Yeah. So I think we have great spinners. We have the best T20 spinner in our team, and that speaks for itself. And with that, we have a good combination of Indian spinners. We have Sai, we have Washington, who's been part of the Indian cricket team for a very long time. So I think we have got some really experienced spinners. Yes. I'm Meghna Dev from DT News. There is this partnership with Pokemon. Do you have to say something about it? Firstly, I don't think as a team we are trying to chase 300 as a total. That's not what our aim is. We want to play the kind of cricket, we will assess what the condition is and what the situation is, and we want to play that kind of cricket. If the wicket or the situation allows us to make 240, 250, 260 runs, we are not saying no to that.
but there might be a situation where 150, 160 would be an ideal total on a wicket. And hence, I feel as a team, if you are only looking to play one way, then you're not adapting the things how you should. And a great team, the hallmark of a great team is that it adapts the best to the suitable conditions and the challenges that are thrown at them. प्लानिंग है रन रेट को अच्छा लाने के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए? सर प्लानिंग तो ये रहती है कि आप पावर प्ले में जितने ज़्यादा रन बना सकें और जितनी कम विकेट हो सके. आई थिंक टीम की हमारी जो पिछले साल परफॉर्मेंस थी उतनी अच्छी नहीं थी, और वो चाहे पावर प्ले ले लो या उसके बाद ले लो, उस चीज़ में दर्शाती है वो चीज़ कि अगर हम जिस तरीके से पावर प्ले में खेलना चाहते थे और उसके बाद भी जैसे खेलना चाहते थे, अगर हम उतने मैच नहीं जीत पाए या क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये जाहिर से बात है कि हम जो गेम के फेजेस होते हैं वहाँ पे हम उतना अच्छा नहीं खेलें. तो एज अ बैट्समैन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम पावर प्ले में जाए और जितना पावर प्ले को हम अच्छे से खेल सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं वही करने की कोशिश रहती है. और आई थिंक इस बार होपफुली जो चीज़ें हम पिछले साल नहीं कर सके उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे. Talking about team. ना जैसे अगर आपने मोहम्मद शामी की बात करी, नाउ वी हैव पीपल लाइक अगीसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज, whenever they have played for the other franchises with that much experience, now it's their thing, they will do the same thing. And as when you talking about Noor, so early the same question, taking that conversation forward, we have people like Washington Sundar, Sai Kishore, Rashid Khan, so we have enough spin battery also. Yes, you definitely miss the skill set of Mohammad Shami and Noor Ahmed, and that's what IPL is. You know, every 3 years there will be new guys coming in and they have to do that role. सर डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में है. हो सकता है कि हमारा 150 पे एक ही आउट हो 15 ओवर में, तो उनको ऊपर आना पड़े बैटिंग करने के लिए. हो सकता है कि ऊपर से जल्दी विकेट गिर चुके. तो आई थिंक ये रोल और पोजीशन चेंज होती रहती हैं मैच के सिचुएशन के हिसाब से. जो हमारा जिस तरीके का हमारा मिडिल ऑर्डर है, लोअर ऑर्डर है, आई थिंक हम बहुत लकी हैं कि हमको इतनी डेप्थ नहीं, तो जनरली टीम्स में इतनी डेप्थ नहीं होती है. हमारे पास आई थिंक नंबर 8-9 तक बैटिंग है, तो वो हमको अलाउ करती है कि हम ऊपर से थोड़ा और फ्रीली खेल सकते हैं. और जो मिडिल ऑर्डर, रोल ऑर्डर, वो तो आई थिंक सिचुएशन के हिसाब से सर चेंज होता रहता है कि टीम क्या सिचुएशन है, अभी टीम को क्या डिमांड चाहिए. क्या सर बात क्या होती है ग्लेन फिलिप्स की मीडिया में, बताओ, मेरे को आइडिया नहीं होता आज तक. पोजीशन फील्डिंग का पर अभी उसमें भी एक हफ्ता है हमारे पास. बाकी देखिए फील्डिंग तो हर जगह कर सकते हैं, ये बात तो पक्की है. और गेंदबाजी की मुझे लगता है नहीं कि गुजरात टाइटन को कि उनकी गेंदबाजी की जरूरत पड़ेगी. ना ही पड़े तो इसका मतलब टीम बेहतर कर रही है. शुभम, सिद्धार्थ, इस बार कितना अलग आप इसे देखते हैं? दूसरा भाग मेरे प्रश्न का यह है कि पहला मैच मुंबई इंडियंस के सामने, कैसे उसे आप आंक रहे हैं? क्या माइंडसेट के साथ इस बार आप मैदान में उतरेंगे? सर पहला मैच आई थिंक पंजाब के साथ है जी. तो सर ऐसा कैप्टनसी और बैटिंग को जितना ज़्यादा हम सेपरेटली रखें उतना ज़्यादा बेहतर होता है. उसको मेरे एक्सपीरियंस से तो यही है कि अगर मैं उसको मिक्स ना करूं, क्योंकि बैटिंग अगर मैं जब बैटिंग करने जा रहा हूं तो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि मैं एज अ बैट्समैन खेलूं वहाँ पे, और जो मैं डिसीजन एज अ बैट्समैन वहाँ पे लेता हूँ वो सबसे मेरे लिए तो सबसे बेहतर डिसीजन या अच्छे डिसीजन वही होते हैं कि मैं एज अ बैट्समैन डिसीजन लूँ बैटिंग करते हुए. कैप्टनसी का रूल जब हम या बैटिंग करके मैं आउट हो चुका हूँ तब, या फिर हम फील्डिंग जब कर रहे हैं उस समय पे या ऑफ द फील्ड उस समय पे ज़्यादा उस चीज़ का रोल रहता है. बैटिंग करते हुए जितना मैं अपने आप को एज अ बैट्समैन की तरह वहाँ पे बैटिंग करूँ तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा. Last 2 questions. What lessons did you take from your first year as captain? The other question is, it's about home advantage. The Narendra Modi Stadium in Ahmedabad has been a fortress for the Titans in previous seasons. How important do you think the home crowd will be in getting the team off to strong start this year? And the Gujarat Titans fan have been incredible supportive since the team's inception. What message do you have for them as you head into the season? सर 4-5 क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन में पूछ लिए. ये मैं पहले भी सोच रहा शुक्र है मुझसे नहीं पूछा. पॉडकास्ट कर रहे हैं सर लेसन्स एज अ कैप्टन आप मेरे लिए जैसे पहला साल था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं थी मेरे लिए और मुझे सीखने को मिली. और आई थिंक
सबसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग चीज़ कैप्टनसी की यही रहती है कि हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है किसी प्लेयर के बारे में या फिर अपने बारे में। तो वो सब चीज़ें हैं जो मुझे सीखने को मिली अपने बारे में और प्लेयर्स के बारे में, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे अपने ऊपर अगर मुझे एक अच्छा कैप्टन बनना है काम करने की ज़रूरत है। और होम एडवांटेज तो आई थिंक सर रहता ही है। टीम जो भी फ्रेंचाइजी टीम बनाती है वो उनकी जो कंडीशंस हैं, घर की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से वो अपनी टीम बनाती हैं। बट अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखें सर 2023 में हम आई थिंक जितना अच्छा हमने होम में परफॉर्म किया उतना ही अच्छा हमने अवे में भी परफॉर्म किया था। तो अवे में भी परफॉर्म करना उतना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही ज़रूरी होता है जितना होम में परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। और फैंस का सपोर्ट तो लकीली हमको, सबसे बड़ा स्टेडियम है सर दुनिया में, तो फैंस का सपोर्ट तो हमेशा लकी हम कि इस स्टेडियम में खेल रहे हैं और हमको बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है उनका हर साल। Nehra ji, last question, since she said that, would you say something that he is going to carry forward that rare legacy for India? सर पहले तो जहाँ से आपने शुरू किया उतनी सारी चीज जो आपने 4 नाम ली हैं, इनका तो पता नहीं, किसी में भी मैंने आज तक नहीं देखी इंक्लूडिंग वसीम भाई, क्योंकि उनके पास भी आपने तो बाउंस भी ऐड कर दिया ना। तो बट एनीवेज आपकी बात नहीं बिल्कुल देखिए, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हरदीप सिंह की बात आप करें, हमने तो खेल लिया जो खेल लिया, हमारा तो हो गया काम। पर हरदीप सिंह जिस तरीके के गेंदबाज है, जो फास्ट बॉलिंग के लिए आपको सबसे मैं कहूँगा सबसे पहली जो रेमेडी है, जो सबसे जरूरत है वो है हार्ड वर्क, कि 60, 70, 80% तो आप जिसकी बॉडी होगी, और वहाँ पे हरदीप सिंह मैं कहूँगा कि 10 में से 110 नंबर है। तो इसलिए जिस तरीके से वो भी गेंदबाजी कर रहे हैं, और यहाँ से आप विद एक्सपीरियंस उनको बेहतर ही देखेंगे। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी उनकी फिटनेस है, जिस तरीके के उनके वर्क एथिक्स हैं, कि हु नोस कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी आपको गेंदबाजी करते दिखें। लास्ट ईयर देखिए इम्पैक्ट प्लेयर से बिल्कुल फर्क पड़ता है, पर पिछले साल अगर आप देखेंगे 2023 में मैं कहूँगा, माफ कीजिएगा 24 में ज़्यादा चर्चा ये शुरू हुई, 2023 में भी ये नियम था। ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल आ गया तो हर बार आप ये देख रहे हैं कि 240-85 रन बन रहे हैं। अगर आज भी आप सारे ग्राउंड मिला के, अगर किसी को आंकड़ों का भी शौक है, तो जो एवरेज स्कोर है वो भी आज भी 180-85 होगा पूरा IPL का, क्योंकि ओवर तो 20 ही है ना, चाहे आप एक फालतू प्लेयर ही क्यों ना हो। और जिस दिन टीम ने रन जब भी ज्यादा बनाए हैं, तो ऐसा नहीं है कोई नोवा आदमी आकर 10 बॉल में 50 रन बना के गया है, जो ऊपर के 5-6 उन्होंने ही बनाए होते हैं, चाहे वो 240 हो चाहे वो 260 हो, थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है। और जहां तक अहमदाबाद की पिच का सवाल है, जी हाँ, जो टीम IPL में मैं पूरे कहूंगा कि जो टीम ज्यादा गेंदबाजी बेहतर करती है उसके चांसेस ज्यादा बनते हैं, और इस ग्राउंड पे आपको फास्ट बॉलिंग अच्छी चाहिए जो हमारे पास है, और इससे पहले भी जो रही है। लास्ट ईयर कुछ इंजरीज हुई, मोहम्मद शामी नहीं थे, हार्दिक पांडे नहीं थे, जिसके चलते थोड़ा फर्क जरूर पड़ा। तो ज़्यादा हमें कुछ ऐसे प्लानिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पिछले सालों से जिस तरीके से खेलते आए हैं उसी तरीके से आगे खेलते हुए बढ़ेंगे।